Hello, Namaste, very good afternoon everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. In the previous lecture, we have started the new act, the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act of 2006, in which we have discussed the definition, the extent and the rights of whom the traditional forest dwellers and the scheduled tribes. So this particular act was basically enacted by the government to give the rights to those people who had the right to live and occupation into the forest lands which were taken away from them, and their right were not recorded anywhere, and they were displaced from the particular forest in that village from 13 December 2005 specifically. So now in today's lecture we'll start with section number 4 that talks about the recognition and the vesting of the forest rights. So anybody who hasn't seen the part 1 of this particular act, please first go and check out that act, then you can synchronize it together with this part number 2 of this particular act, and it will be easier for you to grasp all the content. So if you like our video, so don't forget to hit like, share and subscribe button today, right? So section number 4 talks about the recognition and the vesting of the forest right. Now recognition and vesting. Now rights has been vested and how these rights would be recognized by the government and other people. So let's just check out that. The rights so given to these scheduled tribe or other traditional forest dweller into a particular forest land will be a heritable right, because those people would have been or was living in a generation to generation category, and another generation will also get that particular land. So it will be a heritable land but not alienable. So the right so given by the government under the particular act will be heritable in nature but not alienable in nature. It will be transferable, so it will not be alienable or transferable. हेरिटेबल है, एलियनेट नहीं कर सकते और ट्रांसफर नहीं जमीन को किया जा सकता। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। जब भी लैंड जो है किसी के नाम पे सरकार दोबारा से उसकी फॉरेस्ट के अंदर जमीन उसको वापस देगी, तो वो जो उसका राइट क्रिएट किया जाएगा अपॉन दैट लैंड, दैट रजिस्ट्री वुड बी डन इन दी जॉइंट नेम ऑफ दी स्पाउसेस। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पे इक्वली वो शेयर रहेगा। ऐसे नहीं किसी एक पर्सन के नाम पे जमीन होगी। हाँ, अगर वो जॉइंट फैमिली में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ट्राइब के लोग जॉइंट कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, तो उस एरिया के अंदर जॉइंट फैमिली का जो हेड है उसके नाम पे वो जमीन कर दी जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। 4 हेक्टेयर से ज्यादा का जो है लैंड ऑक्यूपेशन सरकार किसी भी हालात में नहीं देगी, यानी ज्यादा से ज्यादा जितनी भी जमीन इस एक्ट के तहत उन लोगों को वापस दी जाएगी, उनको रिहा उनकी जमीन का मालिकाना जो हक दिया जाएगा उस फॉरेस्ट के अंदर, वो पर फैमिली 4 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होगी। तो ये चीज आपको खासी ध्यान रखनी होगी। नाउ लेट्स स्विच टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 5 दैट टॉक्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ द होल्डर ऑफ फॉरेस्ट राइट। होल्डर्स आर हु these particular tribes and the families which are counted in those tribes or other traditional forest dwellers. So holder here we are talking about them. So what will be their duty? Number 1, to protect the wildlife, forest and biodiversity, as I said earlier in the previous video also, that they are very essential for the conservation of that forest. इनका वहाँ होना उस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो वहीं पे काम करते हैं, बाइंडर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके ही आगे बेचते हैं। उनका रहन सहन वहाँ पे, तो फॉरेस्ट की संरक्षण, क्योंकि वहाँ के पेड़ पौधों को देवी देवताओं जैसे पूछते हैं अपने पर्टिकुलर कम्युनिटीज, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, अननेसेसरी जो डिफॉरेस्टेशन है उसको भी रोकने में ये लोग काफी कारगर है। कैचमेंट एरिया, वाटर रिसोर्स, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया आर डिमांडेड टू बी प्रोटेक्टेड बाय दीज होल्डर्स। हैबिटेट टू बी प्रिजर्व्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस अफेक्टिंग कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, and the decision of Gram Sabha for protection can be compiled with. So Gram Sabha will have a very strong role, because they will only give the government the data that whose land has been taken away and who has a right upon that particular land. तो इनका से काफी strong रहेगा, ठीक है। They will be the immediate authority जिनको ये forest dwellers report करेंगे if their land has been dispensed with, right students? Now we proceed for section number 6 that talk about authorities to vest forest rights. Now authority section 6 again is a very important act. So section 6, authorities, ठीक है। इसमें आपको सेक्शंस और सेक्शन के नाम जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट्स एंड ड्यूटीज होल्डर्स के आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिर्फ वही कवर किए जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट डेट पता होनी चाहिए, किस तरीके से ये एक्ट लागू है, कितना एक्चुअल ऑक्यूपेशन पर हेक्टेयर पर फैमिली होगा, ये चीज आपको याद रखनी होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर,
जिसमें से मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चीज याद रखनी होगी कि जब हम राइट्स की बात करेंगे तो वो हेरिटेज मतलब दे कैन बी हेरिटेबल, बट एलियनेट या ट्रांसफर आप उन्हें नहीं कर पाएंगे। दोनों स्पाउसेस के नेम पे जॉइंट पे चलेगा प्रॉपर्टी का नाम, अगर वो जॉइंट फैमिली है तो उसके हेड के नाम पे वो प्रॉपर्टी जाएगी। तो ये चीजें आपको खासी इसमें ध्यान रखनी है। द रोल ऑफ द ग्राम सभा हैज टू बी रिमेंबर्ड है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही पाइवटल रोल प्ले करना है। तो सबसे पहले एक ड्वेलर है, जैसे हम कहते हैं फॉरेस्ट ट्राइबल फैमिली, ठीक है। ये सबसे लो लेवल पे, जिनसे हो सकता है उनकी जमीन छीन ली गई हो या जिनका मालिकाना हक है रिकॉर्डेड नहीं है, नाउ दे वांट टू रिहैब इनटू दैट एरिया, ये सरकार ने उनको जमीन दे रही है। तो फर्स्ट सबसे नीचे बॉटम लेवल टियर 1 पे आपकी एक फॉरेस्ट की ट्राइबल फैमिली होगी या ट्राइबल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। उनकी इमीडिएट सीनियरिटी पे आपके पास आती है ग्राम सभा ऑफ द विलेज, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस फॉरेस्ट की बात की जाएगी उसका किसी विलेज के अंदर बाउंड्री के अंदर होना जरूरी है। अगर वो विलेज के बाहर है, कोई सिटी या टाउन को नहीं लगती तो प्रॉब्लम आती है। सो विलेज की बाउंड्री के अंदर जो फॉरेस्ट आता है उस एरिया में जो ट्राइब्स रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं, ग्रुप्स रहती हैं, जिन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया उस एरिया से, यहाँ पे उनकी बात की जाएगी। ग्राम सभा से सीनियोरिटी के अंदर चले जाएंगे सब डिविजनल लेवल कमिटी, लेवल कमिटी, ठीक है। और इनसे सीनियर आएगा आप लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, राइट। तो अब इन केस पार्टी हैज अप्रोच देम, इन्होंने उनका राइट रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो इनके अगेंस्ट ये फैमिली जो है सब डिविजनल लेवल कमिटी के पास जाएगी और इन्होंने अपील दायर करानी है इन लोगों के पास। सो अपील जो है against the decision of Gram Sabha will be filed in sub-divisional level committee. Against the order of sub-divisional level committee, the appeal would be filed in the district level committee, जिसका decision final होता है। डिसीजन किस चीज के रिगार्डिंग लिया जाएगा कि whether they are forest dweller, whether they have right in forest, whether they should be given a forest land, were they actually displaced in any time, even before 13th of December 2005 and even after 2005 with the implementation of this act. So whether they have to be given a land or not, whether they were basically displaced or not, all these kind of decisions, whatever. सो उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी रहती है। सो अपील्स चाहे आपने ग्राम सभा के ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पे डालनी है, चाहे सब डिविजनल लेवल की अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में डालनी है। टाइम पीरियड होगा फॉर फाइलिंग दी अपील 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट जिस दिन ऑर्डर जो है वो पास किया गया और आपको कॉपी मिल गई है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का डिसीजन फाइनल होगा। दिस इज द सीनियर मोस्ट पोजीशन जिनके पास आप अपील कर सकते हैं। इसके बाद सीधा गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री जो है ट्राइबल अफेयर्स की वो आती है। तो इन लोगों का बेसिकली काम यही होता है कि इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन करा के लोगों को रिहैब करें, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें और उन्हें फॉरेस्ट के राइट्स जो है मुहैया करवाए जाए। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, दैट इज द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, सेक्शन नंबर 8। हाँ जी, तो अब बात आ गई है हमारे पास कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, राइट स्टूडेंट। सो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अलग अथॉरिटी आ जाएगी, स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी। सब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है ना उसके ऊपर भी एक मॉनिटरिंग कमेटी है सरकार की तरफ से बनाई गई है, उसे कहते हैं स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई केस दायर करना है किसी भी डिवेलपर ने, ठीक है, उनको अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का केस भी नहीं पसंद आया, वो कोर्ट अप्रोच करना चाह रहे हैं यहाँ मूवमेंट के ऊपर, तो सीधा कोर्ट को डायरेक्टली हम अप्रोच नहीं करेंगे, सीधा हम जो है मजिस्ट्रेट के पास केस फाइल नहीं करेंगे। उस एरिया के अंदर सबसे पहले एक नोटिस सेंड किया जाता है, नोटिस विद इन 60 डेज टू स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी एक बिठाई गई है इस एक्ट के तहत, जिसके पास आप एक नोटिस सेंड करते हैं टू इनिशिएट अ कंप्लेंट अगेंस्ट द सोसाइड अथॉरिटी इन रिगार्ड टू व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट ड्वेलर्स लैंड। फिर 60 दिन के अंदर इनको नोटिस दिया जाता है कि ऐसे केस फाइल करना है, हमारे बिहाफ से आप केस फाइल कीजिए। जब इनकी तरफ से यस आ जाएगा तो ये लोग जो है ये राइट देंगे और फिर कोर्ट के अंदर एज ए कंप्लेनेंट बन के केस को फाइल कर दिया जाएगा ऑन रिगार्ड टू दैट फॉरेस्ट ड्वेलर्स, राइट स्टूडेंट्स। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 11, नोडल एजेंसी,
सबसे टॉप लेवल एजेंसी कौन सी है जिसके नीचे ये सारी कमिटीज आती हैं, ग्राम सभा भी आएगी, एक्ट की इंप्लीमेंटेशन भी आएगी, वो कौन सी एजेंसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। हाईएस्ट लेवल पे ये रहेगी। इस पर्टिकुलर स्टेट मॉनिटरी कमेटी का काम ये है कि इसने कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेंट दिलानी है, ये लोग आगे बढ़ के जाएंगे कोर्ट में कंप्लेंट जो है दायर करेंगे। इनका इंप्लीमेंटेशन के साथ काम नहीं है, इनका ऑफेंस की कॉग्निजेंस इससे रिलेटेड है। अदरवाइज जो हमने प्रीवियस अथॉरिटी स्टडी की है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जो कमिटी है वो बेसिकली आपकी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है जो सेंटर के अंदर है, जिसका मेन काम है इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन कराना, मेक श्योर करना कमिटीज जो है वो टाइमली फॉर्मेट हो, कोई भी वेकेंट ना हो, किसी के भी राइट जो है सबड्यू ना किए जाएं। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट वेदर्स एक्ट ऑफ 2006, जिसके अंदर टोटल 14 सेक्शंस और 6 चैप्टर्स हैं। सो इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट मी नो अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लैरिफाई हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और मैं उसे डेफिनेटली सॉल्व आउट करूंगी। सो टिल देन कीप लर्निंग, आई विल सी यू नेक्स्ट।